गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। इन लास्ट पिछली कक्षा में हमने bridge course we have completed in last class. Okay, in last class we have completed bridge course. Okay children, so today we'll start with the first poem in the from the textbook. Okay, so open, if you have textbook, open your textbook. If you have textbook, open your textbook, keep one pencil with you and rough book. Okay children, so take out your textbook. हम आज पहली कविता पद्य 1 की शुरुआत करेंगे। पद्य 1 प्रार्थना। Okay, first poem प्रार्थना. If your textbook, open your textbook, keep your finger, and if you don't have, listen it properly. Okay children, and keep pencil also ready. Okay children. Page number 5. प्रार्थना पद्य का, इस कविता का नाम क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना, what is the meaning of प्रार्थना? Yes children, प्रार्थना means prayer. प्रार्थना means prayer, prayer which we do for the God. Prayer, every children, every child they will do for God here. हम प्रभु के सामने हमारी प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना means what? Prayer. Okay, so when I am writing here meaning on the board, no, you have to underline that word and write up meaning in English. Okay, and if you are not writing in textbook, take your rough book and in that rough book you write the meaning so you can understand this poem properly. हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। So first write what is the meaning of प्रार्थना. Prarthana means prayer. Okay. Now Prabhu. What is the meaning of Prabhu? Prabhu means God. Prabhu means God. Write in textbook children. हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। हमारे means what? Ours. And tum means you. Tum means what children? You. If you don't know, you write underline tum and write there you. Tum means what? You. And mata pita. Mata pita means what? Father and mother. Mata pita means parents. Okay. Father, mother and father. हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। God, dear God, we are, oh God, here you are parents for us. You are like parents for your mother and father for us. तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे. See the second line. तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे. तुम बिन means without you. Bin means what? Without. Bin means what? Without. तुम बिन means without you. Bin means without. तुम बिन बिगड़ी. What is the meaning of बिगड़ी? बिगड़ी. बिगड़ी means wrong things. बिगड़ी, बिगड़ा हुआ काम. Okay, बिगड़ी means what? बिगड़ा हुआ काम. Wrong things which happened in our life. बिगड़ी, wretched state. Okay.
तुम बिन बिगड़ी कौन, कौन मीन्स हु, कौन मीन्स व्हाट, हु, संवारे, संवारे मीन्स टू करेक्ट, टू करेक्ट, ओके, संवारे, संवारे, टू करेक्ट, टू करेक्ट समथिंग, ओके। तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे, डियर गॉड यू आर mother and father to us, and without you who will solve the problem, who will correct the things which had gone wrong in our life. So तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे, तुम्हारे बिना हमारे जीवन में जो बिगड़ा हुआ काम है वो कौन सुधारेगा, कौन संवारेगा, कौन ठीक करेगा, अंडरस्टूड। तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे, तुम्हारे बिना, आपके बिना प्रभु, हे प्रभु आपके बिना हमारा, हमारे जीवन में जो बिगड़ा हुआ काम है वो कौन संवारेगा, कौन ठीक करेगा, कौन सुधारेगा। So here this prayer is doing, who is doing this prayer? Children, they are doing this prayer and telling to whom? To God. हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे, तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। Understood the meaning of बिन, बिगड़ी and संवारे, okay? Without, आपके बिना हमारा बिगड़ा हुआ काम कौन संवारेगा, कौन ठीक करेगा, ओके। संवारना मीन्स व्हाट, ठीक करना, टू करेक्ट समथिंग। अंडरस्टूड दिस टू लाइंस, ओके। नाउ विल मूव टू द सेकंड पैरा, फर्स्ट लाइन। हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, नादान। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नादान? Nadan means innocent. Nadan means what? Innocent. हम नादान बालक, बालक means children, तेरे सहारे हैं, सहारा, सहारे means what? सहारे, सहारे means with help, help, okay. हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, we innocent children are here with the help of you. हम नादान बालक तेरे सहारे हैं means we innocent children are here with the help of you. So you are everything to us. God, हे प्रभु तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हम नादान बालक हैं, नादान बालक, we are very innocent children. So we are here in this world with the help of you. You are teaching us everything. So हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं, तुम्हारी दया हो। नाउ तुम्हारी दया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दया? यस, दया मीन्स व्हाट? काइंड, काइंडनेस। तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मांगना? टू आस्क, मांगना, मांगते हैं, मांगते हैं, मांगना, टू आस्क। मांगना मीन्स व्हाट? टू आस्क। तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं means we need your kindness, we need your kindness, we are asking your kindness, you keep always kindness towards us. तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं, हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं, we are asking your kindness. हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, we are here with the help of you, we are here in this world with the help of you, and तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं, तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं, we are asking your kindness. पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाएं, पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए। थर्ड पैरा, कीप योर फिंगर इन थर्ड पैरा, ओके। पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए means what? पढ़ाई लिखाई means what? Study. पढ़ाई लिखाई means पढ़ना means what? To read. And लिखाई means what? To write. लिखना means what? To write. पढ़ाई लिखाई means what? To study. पढ़ाई लिखाई में सदा. Now what is the meaning of सदा? Yes, सदा means always. सदा means what children? Always. पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए। मन लगाना means
we have to keep concentration, we have to keep our mind, मन लगाना, to keep our mind. Where we have to keep our mind? In studies. We have to concentrate in our studies. पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए, हमें हमेशा पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाना चाहिए. Means we have to read, we have to read carefully, we have to concentrate in our studies. पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए. यह कौन मांगता है? बच्चे मांगते हैं. किसके पास से मांगते हैं? प्रभु के पास मांगते हैं. प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा पढ़ाई लिखाई में हमारा मन लगाए. पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए, भले हम बने सबको भलाई सिखाएं. भले हम बने. What is the meaning of भले? Yes, children, first complete this meanings, then I'll write other meanings. Complete this meanings in textbook or workbook. Okay. Completed? Yes, children. So here this is प्रार्थना, prayer, प्रभु, God, माता पिता, parents, been, without, बिगड़ी, wrong things, संवारे, to correct. संवारे means what? To correct. नादान. नादान means what? Innocent. नादान means what? Innocent. सहारे. सहारे means what? To help. सहारे means what? To help. Daya. Daya means what? Kindness. Daya means what? Kindness. And mangna, to ask. Sada means always. Prathana, prayer, Prabhu, God, Mata Pita, parents, mother and father, being, without, bigdi, wrong things, samvare, to correct, nadan, innocent, sahare, help, daya, kindness, mangna, to ask, and sada means always. Okay, yes, children. Now, bhale. What is the meaning of bhale? Bhale means good. Bhale means what, children? Good. भले हम बने सबको भलाई सिखाए. बने means we should become good person. भले हम बने means we have to become good person. भले हम बने सबको भलाई सिखाए. सबको भलाई सिखाए. सबको means to everyone. सबको means what, children? To everyone. And सिखाना means to teach. सबको means what? Yes, सबको means to everyone. And सिखाए means what? To teach. भले हम बने सबको भलाई सिखाए. भले means good and सबको means to everyone and सिखाए means to teach. भले हम बने, first we have to be a good person, then we have to teach others also good things to everyone. Okay, भले हम बने सबको भलाई सिखाए. We have to teach good things to everyone. सबको भलाई सिखाए. We have to teach everyone good things. What is good, what is bad in our everyday life. So बच्चे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भले हम बने
we have to become a good person and we have to teach others also good things in their life. पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए, भले हम बने सबको भलाई सिखाए. This completes our third para. Now we'll move to the fourth para. बड़ों और छोटों का आदर करें हम. बड़ों और छोटों का आदर करें हम. What is बड़ों? बड़े means what? Elders. And छोटे means what? Youngers. Okay. बड़ों और छोटों का, बड़ों means हमसे जो बड़े हैं और हमसे जो छोटे हैं, हम उनका आदर करें हम. आदर. What is the meaning of आदर? आदर means respect. Other means what, children? Respect. बड़ों और छोटों का आदर करें हम, बने सत्यवादी कभी न डरे हम. बड़ों और छोटों का आदर करें हम. We have to respect elders also and youngers also. हमें अपने से बड़े लोगों का और अपने से छोटे लोगों का आदर करना चाहिए. उन्हें हम मान देना चाहिए. हमें उनके साथ अच्छी तरह का व्यवहार करना चाहिए. सो यह कौन मांगता है? बच्चे मांगते हैं. किसके पास मांगते हैं? प्रभु के पास मांगते हैं. कहते हैं हमें सबका आदर करना चाहिए. बड़ों का और छोटों का. जो हमसे छोटे हैं उनका भी आदर करना चाहिए. उनके साथ भी हम अच्छे से बात करनी चाहिए. तो हम बड़ों का और छोटों दोनों का भी आदर करना चाहिए. हम ऐसे सोचेंगे कि हम सिर्फ बड़ों का आदर करेंगे, नहीं, ये गलत है. हमसे छोटे भी जो है उनके साथ भी हम आदर से व्यवहार से अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए और उनको भी आदर देना चाहिए. We have to give respect to them also. छोटे को भी हमें आदर देना चाहिए. बने सत्यवादी कभी न डरे हम. बने सत्यवादी means how we have to become. बनना means to become. Okay. Satyavadi. Now what is the meaning of Satyavadi? Satyavadi, follower of the truth. Satyavadi means what, children? Follower of truth. Follower of truth. Follower of truth. Satyavadi means a follower of truth. कभी न डरे हम. डरना too means to scare. Okay. डरना to scare. Afraid. What they are asking here? See, children. बने सत्यवादी हम means we should become सत्यवादी. सत्यवादी means what? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सत्यवादी means what? सच बोलना चाहिए. अगर हमसे कोई गलत काम भी हो जाए तो भी हमें सच बोलना चाहिए कि ये हमसे गलत हुआ है करके. हमें सत्यवादी बनना चाहिए. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और कभी हमें डरना नहीं चाहिए. अगर हमने गलत काम किया है तो हमें वह स्वीकार करना चाहिए कि हमने यह गलत काम करना चाहिए और आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. ओके. सो बने सत्यवादी कभी न डरे हम. should not get scared anytime. Sometimes by afraid of anyone we are telling the wrong things, we are not telling the right thing. What is the truth? We are not telling by the fear of someone. But this is wrong. हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए. किसी के डर के प्रभाव से हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. या ऐसे होगा या ऐसे होगा, इसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं कभी कभी. नहीं, यह गलत है. हमें हमेशा सच बात बोलनी चाहिए. तो बने सत्यवादी हम. यह बच्चे भगवान से प्रार्थना करते कि हम हमेशा सत्यवादी, सच बोलने वाले बने और हम कभी किसी से ना डरे. अगर हम सच बोलते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. अगर हम सच है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है. अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम डरेंगे. इसीलिए हम हमेशा सत्यवादी बनना चाहिए. हमें हमेशा सत्यवादी बनना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए. और कभी हमारे से गलती हो जाए फिर भी हमें उसे स्वीकार करके
हमें माफी मांगनी चाहिए और नेक्स्ट अगली बार हम यह गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, यह भी कहना चाहिए। सो बने सत्यवादी, कभी ना डरे हम। नाउ नेक्स्ट पैरा, 5th पैरा। हो जन कल्याण काम हमारा, हो जन कल्याण काम हमारा means what children? हो जन कल्याण काम हमारा. What is the meaning of jan? Jan means what? People. Jan means what? People. Jan means what? People. Kalyan. Now what is the meaning of Kalyan? Kalyan means welfare. Kalyan means what, children? Welfare. Okay. हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करें हम. हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करें हम. मीन्स जन कल्याण काम हमारा, हमारा काम क्या होना चाहिए? काम मीन्स व्हाट? वर्क. काम मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? वर्क. काम मीन्स वर्क. हो जन कल्याण काम हमारा, our work. What should our work? Our work we should help others. Means हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जो अच्छा है लोगों के लिए. कल्याण, कल्याण मीन्स व्हाट? अच्छा है. इट्स वेलफेयर, इट्स गुड फॉर पीपल. हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का भला हो. that is the meaning of this line. हो जन कल्याण काम हमारा, हमारा काम और वर्क should means welfare of human beings. What our work should be? The welfare of the human beings. Okay. हो जन कल्याण काम हमारा, हमारा काम क्या होना चाहिए? लोगों के लिए अच्छा करना है. So हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करें हम. जन जन की सेवा करें हम. सेवा means what? To help or to give the service. Okay. सेवा means what, children? सेवा. To help or to give the service or service. जन जन की सेवा करें हम. We should help the people. We should help the people. So whenever we will get the people in need, we should help them. So that who are asking all this? Children. To whom? To God. What they are telling, see here. हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करें हम. हमारा काम यह होना चाहिए कि हम लोगों के लिए अच्छा काम करें और लोगों की सहायता करें. लोगों की सहायता करें. जन जन मीन्स व्हाट? पीपल, ह्यूमन बीइंग्स. ओके. जन जन की सेवा करें हम. वी शुड हेल्प द पीपल. हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करें हम. लास्ट 2 लाइन्स. तुम देना साथ हमारा सदा, तुम देना साथ हमारा सदा, तुझे भूलकर ना कोई काम करे हम. तुम देना साथ हमारा सदा. तुम मीन्स यू. देना साथ हमारा सदा मीन्स यू, गॉड. यू शुड बी ऑलवेज विथ अस. तुम देना साथ हमारा मीन्स व्हाट? गॉड, यू शुड बी ऑलवेज विथ अस. तुझे भूलकर ना कोई काम करे हम. तुझे भूलकर. भूलना मीन्स टू फॉरगेट. ओके. भूलना, भूलकर, भूलकर means to forget. To forget. तुझे भूलकर ना कोई काम करे हम. By forgetting you, you should not do any work. काम करे हम. तुझे भूलकर हमें कोई काम नहीं करना. कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं? हम भगवान गणेश को याद करते हैं ना. तो हम कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु को याद करते हैं. सो यहाँ पर क्या कहा गया है? तुम देना साथ हमारा सदा. प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारे साथ रहिए. सुख हो या दुख हो, आप हमेशा हमारे साथ रहिए. और तुझे भूलकर
हम तुम्हें भूलकर कोई भी काम ना करे। ऐसे कौन कहता है? बच्चे कहते हैं। किससे कहते हैं? प्रभु से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तुम देना साथ हमारा सदा, यू ऑलवेज बी विथ अस। तुम देना साथ हमारा सदा मीन्स व्हाट? यू ऑलवेज बी विथ अस। और तुझे भूलकर ना कोई काम करे हम। बाय फॉरगेटिंग यू we should not do any work. We should not do any work. So this completes our poem. Once I'll read and once again I'll repeat. I'll explain in the next class also, children. Okay? तुम देना साथ हमारा सदा. You always give the always be with us, and by forgetting you, we should not start any work. Okay, we should not start any work. So this completes our poem. If your textbook, keep your finger there. I'll read once. Okay. हे प्रभु, तुम हो माता पिता हमारे, तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं। पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाएं, भले हम बने सबको भलाई सिखाए। भले हम बने सबको भलाई सिखाएं। बड़ों और छोटों का आदर करें हम, बने सत्यवादी कभी न डरे हम। हो जन कल्याण काम हमारा, जन जन की सेवा करें हम। तुम देना साथ हमारा सदा, तुझे भूलकर ना कोई काम करे हम. So this completes our poem. But children, what I explained in last class, Varnamala and Barakri, that is first important. First you learn Varnamala, then Barakri, then only you can read this poem. First you can read the word. First you have to identify which letter it is. Okay, then you have to see the which matra it is. कौन सा वर्ण है और उसके बाद कौन सी मात्रा है. Then you can read that word. Then you can read, आप पढ़ सकेंगे वह शब्द और उसके बाद ही आप फुल वाक्य पढ़ सकोगे, पूरा वाक्य पढ़ सकोगे और उसके बाद ही यह पूरी कविता पढ़ सकोगे. So first you have to learn what I explained in last class, Varnamala and Barakri. Then again, after that you have to read this full poem. Okay, keep your finger and read. Okay, and this first you have to write this meanings in the textbook or a book with pencil. Complete this first. Okay, so you have to complete this and then you have to read full this poem with meanings. Okay, and then we will start exercise, textbook exercise in the next class. Okay, children, thank you.